بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں۔ یہ سب جوان اور انتہائی حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ نے ان کے لیے محل میں ایک بہت بڑا کمرہ بنوایا تھا جس میں قطار در قطار 12 پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ یہ 12 شہزادیاں اسی کمرے میں رہتی تھی۔ رات کو جب یہ اپنے اپنے بستر پر چلی جاتی تو باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا جاتا تاکہ نہ کوئی کمرے میں داخل ہو سکے اور نہ ہی شہزادیوں میں سے کوئی باہر جا سکے۔ لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود صبح جب ان کے کمرے کا دروازہ کھولا جاتا تو 12 کی 12 شہزادیوں کے جوتے ایسے ہوتے جیسے وہ رات بھر رقص کرتی رہی ہوں۔ ان کے جوتوں سے یہ بھی پتہ چلتا تھا جیسے وہ محل سے باہر گئی ہوں۔ ہر روز ان کے لیے نئے نازک جوتے رکھے جاتے، مگر دوسری صبح کے وقت نہ صرف ان کے تلے گھسے ہوئے ہوتے بلکہ کئی جگہ ان میں چھید ہوتے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بڑا تعجب تھا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بار بار سوچتا، غور کرتا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ آخر میری بیٹیاں رات کو کہاں جاتی ہیں اور کیسے جاتی ہیں؟ یہ بات ہر رات ہوتی تھی اور بادشاہ ہر صبح پریشان ہوتا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں، امیروں سے بھی مشورہ کیا۔ ساری صورتحال بیان کی گئی مگر ان کی سمجھ میں بھی یہ راز نہ آ سکا۔ انہوں نے بھی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ادب سے کہا، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ محل کے باہر ہر طرف پہرا ہونے کے باوجود شہزادیاں کیسے باہر جاتی ہیں؟ ان کے لیے محل سے باہر جانا ممکن ہی نہیں۔ آخر جب بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا تو اس نے اعلان کروا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کر لے گا کہ رات کو شہزادیاں کہاں جا کر رقص کرتی ہیں تو اس سے ایک شہزادی کی شادی کرا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ میرے مرنے کے بعد وہی شخص تخت و تاج کا مالک ہوگا، اور اگر وہ یہ رات معلوم کرنے میں ناکام رہا تو اس کی سزا موت ہوگی۔ اس کے لیے اسے صرف 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اگرچہ موت کا خطرہ ساتھ تھا لیکن پھر بھی شہزادی سے شادی اور تخت و تاج کا لالچ ایسا تھا کہ بہت سے نوجوان اور شہزادے یہ راز معلوم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا ایک بیٹا آیا۔ اس نے بادشاہ کے حضور پیش ہو کر عرض کی، بادشاہ سلامت، میں شہزادیوں کا راز معلوم کروں گا۔ اے نوجوان، کیا تمہیں ہماری شرائط کا علم ہے؟ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا اور ساتھ ہی بولا، یاد رکھو، ناکامی کی صورت میں تمہاری سزا موت ہوگی، موت۔ حضور والا، مجھے علم ہے، میں سوچ سمجھ کر حاضر ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تم یہ راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اعلان کے مطابق تمہاری پسند کی شہزادی سے شادی کرنے کے علاوہ تمہیں اپنا وارث مقرر کر دیں گے۔ بادشاہ کے حکم کے ساتھ ہی شاہی خادم شہزادے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی خوب خاطر تواضع کی گئی اور پھر جب شام ہوئی تو اسے محل میں لے جایا گیا اور شہزادیوں کے کمرے سے ملے ہوئے ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا تاکہ وہ ان کی نگرانی کر سکے۔ شاہی خادم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شہزادہ وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ کوئی کھٹکا آواز آئے تو اسے پتہ چل جائے۔ وہ بڑا چوکس ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد بڑی شہزادی اس کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں وائن کا پیالہ تھا۔ وہ شراب کا پیالہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، تم ہمارے مہمان ہو، میں تمہارے لیے یہ وائن لائی ہوں۔ شہزادہ اس وقت شہزادی کے حسن سے اس قدر مروب تھا کہ اس نے بغیر سوچے اور بغیر کچھ بولے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور گھٹا گھٹ وائن پی گیا۔ شکریہ، اس نے پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا اور شہزادی واپس چلی گئی۔ شہزادی کے جانے کے بعد وہ پھر بیٹھ گیا۔ اس کے کان ہر آہٹ اور ہر آواز پر لگے ہوئے تھے اور نظریں شہزادیوں کے کمرے پر جمی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی رات گزری ہوگی کہ اسے اونگ آنا شروع ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لیٹ کر سو گیا۔ سویا بھی اس طرح کہ اسے ہوش تک نہ رہا۔ دوسری صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ آج بھی شہزادیوں کے جوتے کے تلے گھسے ہوئے ملے ہیں تو وہ بڑا پچھتایا۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ وہ کیوں سو گیا۔ شہزادیوں کے جوتے حسب معمول ایسے گھسے ہوئے تھے جیسے وہ رات بھر کہیں جا کر رقص کرتی رہی ہوں۔ دوسری رات بھی اسی طرح ہوا، حالانکہ اس رات شہزادے نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ سوئے گا نہیں، لیکن اس رات بھی اس نے شہزادی کے دیے ہوئے پیالے سے وائن پی لی تھی۔
और पहली रात की तरह गहरी नींद सो गया था। और फिर तीसरी रात भी यही कुछ हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि 3 रातों के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि इस नौजवान को वही सजा दी जाए जिसका हमने ऐलान किया है। इस तरह नौजवान शहजादा मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ ये एक शहजादा ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी कई नौजवान आए और उनमें शहजादे भी थे, वजीरों के बेटे भी थे और अमीरजादे भी शामिल थे। मगर उन सब का हशर भी वही हुआ जो सबसे पहले आने वाले शहजादे का हुआ था। ये सब के सब शहजादे शादी और तख्त व ताज के लालच में अपनी जान गंवा बैठे थे, और शहजादियों का राज अभी तक राज ही था। उसे मालूम करने में कोई भी कामयाब न हो सका था। इत्तफाक की बात, एक गरीब सिपाही का उस मुल्क से गुजर हुआ। यह सिपाही किसी दूसरे मुल्क का था और किसी जंग में इस तरह जख्मी हो चुका था कि अब लड़ने के काबिल नहीं रहा था। उसने भी यहाँ के बादशाह का ऐलान सुन रखा था और उसे यह भी मालूम था कि शहजादियों का राज मालूम करने के लिए कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उस वक्त ये सिपाही एक जंगल में गुजर रहा था। वो अपने ख्याल में मगन चला जा रहा था कि उसे छोटे कद की एक बुढ़िया मिली जो दरअसल परी थी। उसने सिपाही को जाते देखा तो पूछने लगी, तुम इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? तुम्हें कहाँ जाना है? जवाब में सिपाही कदरे उदास लहजे में बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इतना कहने के साथ ही उसने बुढ़िया की तरफ देखा और यूं ही मजाक में कहने लगा, मेरा ख्याल है कि मुझे शहजादियों का राज मालूम करना चाहिए कि वो रात को कहाँ जाकर रक्स करती हैं। हो सकता है इस तरह एक शहजादी से मेरी शादी हो जाए और बाद में मैं बादशाह बन जाऊं। उसने तो ये बात महज मजाक के तौर पर कही थी, लेकिन बुढ़िया ने उस पर सिर हिलाते हुए बड़े इत्मीनान से बोली, हाँ क्यों नहीं, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या शहजादियों का राज मालूम करना मुश्किल काम नहीं है? सिपाही ने चौंक कर हैरानी से बुढ़िया की तरफ देखा। हाँ, मैंने ठीक कहा है, तुम ये काम कर सकते हो। मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर कैसे? खुदा के लिए मुझे बताओ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ममनू रहूंगा। उसने बुढ़िया की मिन्नत करते हुए कहा, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कैसे ये राज मालूम कर सकते हो। बुढ़िया ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया और फिर आस्था से बोली, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, और वो ये कि जब शाम को शहजादी वाइन का प्याला लेकर तुम्हारे पास आए तो उसे पीना नहीं, किसी तरह जाया कर देना, लेकिन शहजादी पर यह जाहिर करना कि तुमने शराब पी ली है। फिर जब वो चली जाए तो तुम झूठ मूठ ऐसे लेट जाना जैसे गहरी नींद सो गए हो, मगर अपनी जगह पूरी तरह होशियार रहना। इतना कहने के बाद उसने सिपाही को एक चोगा दिया और कहा, तुम जब इस चोगे को पहन लोगे तो दूसरों को दिखाई नहीं दोगे, लेकिन खुद सब कुछ देख सकोगे। इस तरह तुम रात को शहजादियों का पीछा कर सकोगे और तुम्हें ये रात मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ जाती है। सिपाही ने जब बुढ़िया की ये बात सुनी तो खुशी और हैरत से उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है। बहर सूरत उसने बुढ़िया से चोगा लिया और उसका शुक्रिया अदा करके चल दिया। अगरचे उसने शहजादियों का राज मालूम करने वाली बात मजाक में कही थी, लेकिन बुढ़िया की बातें सुनकर और उसे चोगा लेकर उसका इश्तियाक बढ़ गया था और उसमें हिम्मत भी पैदा हो गई थी। वो अपने आप से कहने लगा, क्यों ना मैं भी किस्मत आजमाई करूं, हो सकता है बुढ़िया का कहा सच साबित हो। चुनाचे वो वहां से चला और सीधा बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। दरबार में हाजिर होकर आदाब बजा लाया और फिर सर झुकाकर अर्ज की, आलिजा, मैं भी किस्मत आजमाई के लिए आया हूँ, मैं शहजादियों का रात मालूम करूंगा। बादशाह ने एक नजर उसे देखा और फिर बोला, क्या तुम्हें हमारी शराइत का इल्म है? हुजूर मैं जानता हूँ, और तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुमसे पहले कई नौजवान अपनी जानें गंवा बैठे हैं, इसलिए पूरी तरह सोच समझ लो। हुजूर वाला, मैं सोच समझ कर हाजिर हुआ हूँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। जब बादशाह ने यह सुना तो कहने लगा, अगर तुम इस काम के लिए वाकई आमादा हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। इसके साथ ही उसने खादमों को हुक्म दिया, इस शख्स को शाही लिबास पहनाया जाए और इसकी खातिर मुदारत की जाए। जैसे ही बादशाह ने हुक्म दिया, खादिम आगे बढ़े और गरीब सिपाही को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए और अच्छे अच्छे खानों से खातिर तवाज़े की। वो भूखा तो था ही, उसने खूब जी भर के खाया। फिर जब शाम हो गई तो खादिम उसे महल में ले गए और शहजादियों से मिले हुए कमरे में छोड़कर वापस चले गए। सिपाही ने अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और खुद चौकस होकर बैठा हुआ था। उसकी नजरें शहजादियों के कमरे पर लगी हुई थी। जब जरा शाम गहरी हुई तो उसने देखा शहजादियों के कमरे का दरवाजा खुला और बड़ी शहजादी
हाथ में प्याला लिए हुए बाहर आई। शहजादी इस कदर हसीन और जमील थी कि सिपाही ने उससे पहले कभी कोई औरत इतनी खूबसूरत न देखी थी। वो उसे आता देखकर कदरे संभल कर बैठ गया। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास आई और प्याला उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम हमारे मेहमान हो, मैं तुम्हारे लिए वाइन लाई हूँ। सिपाही ने खामोशी से प्याला ले लिया, लेकिन वो उसका बंदोबस्त करके आया था। उसने अपनी ठोड़ी के साथ एक स्पंज बांधा हुआ था। वो शहजादी से प्याला लेकर इस तरह वाइन पीने लगा कि वो मुंह में जाने की बजाय थोड़ी से गिरती हुई स्पंज में जज्ब होने लगा। यूं उसने वाइन का कतरा भी न पिया और प्याला भी खाली कर दिया। लेकिन शहजादी यही समझी कि उसने वाइन पी ली है, लिहाजा वो खुशी खुशी वापस अपने कमरे में चली गई। इधर सिपाही इस तरह लेट गया जैसे उसे नींद आ रही हो, और फिर थोड़ी ही देर बाद वो जोर जोर से खराटे ले रहा था। शहजादियों ने जब उसके खराटों की आवाज सुनी तो वो सब हंसने लगी कि आज भी उनकी तरकीब कामयाब हुई। सबसे बड़ी शहजादी कहने लगी, लो, दूसरे नौजवानों की तरह इस आदमी का भी आखिरी वक्त आ पहुंचा है, ये भी मौत के मुंह में गया। उसके बाद सबने अलमारियां और संदूक खोले और उनमें से अपनी पसंद के शानदार लिबास निकाले। फिर सब आईनों के सामने खड़ी हो गई और लिबास तब्दील करने लगी। वो लिबास भी तब्दील करती जा रही थी और साथ ही साथ एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रही थी। जब सब लिबास तब्दील कर चुकी तो उन्होंने अपने अपने नाजुक जूते पहने जो रोजाना नए रखवाए जाते थे। जूते पहनकर वो खुशी से इस तरह पांव उछाल रही थी जैसे रक्स करने के लिए बेताब हो रही हो। आयन उस वक्त सबसे छोटी शहजादी सहमी सी आवाज में बोली, मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, तुम सब खुश हो रही हो, मगर मैं दिल ही दिल में परेशान हूँ। मुझे यूं लगता है जैसे हमारे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। तुम बड़ी सादा लो हो, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। बड़ी शहजादी ने उसे थपकी देते हुए कहा, तुम हमेशा डरती रहती हो। क्या तुम भूल गई हो कि अब तक कितने शहजादे और नौजवान हमारी निगरानी पर मामूर हुए और सबके सब मौत के मुंह में चले गए। फिर वो छोटी शहजादी की हिम्मत बढ़ाते हुए बोली, जहां तक इस सिपाही का ताल्लुक है, उसकी तो उसी वक्त आंखें बंद हो रही थी जब मैं कमरे में दाखिल हुई थी। अगर मैं उसे बेहोशी का वाइन न भी पिलाती, जब भी वो अब तक गहरी नींद सो जाता, और अब तो मैंने बेहोशी के लिए वाइन भी पिला दी है। उस पर एक और शहजादी उसे तसल्ली देते हुए कहा, क्या तुम सुन नहीं रही हो कि वो उस वक्त खराटे भर रहा है और गहरी नींद सो रहा है। इस तरह उन्होंने छोटी शहजादी को मुतमईन कर दिया और सब ऐसे तैयार होकर खड़ी हो गई जैसे कहीं जाने वाली हो। बड़ी शहजादी एक बार फिर दबे दबे कदमों से सिपाही के कमरे में गई और उसने देखा वो बेहस और बेहरकत पड़ा खराटे ले रहा था। वो जिस तरह लेटा था उसी तरह पड़ा था और अब तक उसने हाथ पांव भी ना हिलाए थे। ये देखकर बड़ी शहजादी खुशी खुशी वापस अपने कमरे में आई और अपनी बहनों से कहने लगी, सब ठीक है, अब जल्दी चलो। इतना कहकर वो अपनी मसेरी पर चढ़ गई और उसने दोनों हाथों से ताली बजाई। ताली का बजाना था कि मसेरी फर्श से नीचे चली गई और वहां एक दरवाजा खुल गया। दूसरी तरफ सिपाही कंकियों से यह सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि शहजादियां एक एक करके फर्श में खुलने वाले दरवाजे में से नीचे जाने लगी। सबसे पहले बड़ी शहजादी नीचे उतरी थी और उसके पीछे पीछे दूसरी। जैसे ही सिपाही ने यह देखा कि तमाम शहजादियां नीचे उतर गई हैं, तो वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उछल कर उठा और उसने जल्दी से बूढ़ी परी का दिया हुआ चोगा पहना और लपक कर शहजादियों के पीछे चल दिया। फर्श में खुलने वाले दरवाजे के नीचे सीढ़ियां थी और अब वो सब उन सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। अभी वो आधी सीढ़ियां ही उतरे होंगे कि पीछे पीछे आने वाले सिपाही के पांव के नीचे छोटी शहजादी का गाउन का कोना आ गया। उसके साथ ही छोटी शहजादी घबरा के खड़ी हो गई और बहनों से कहने लगी, देखो, किसी ने मेरा गाउन पकड़ के खींचा है। ओह, तुम क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो। बड़ी शहजादी सर को झटक कर बोली, यहाँ तुम्हारा गाउन पकड़ने वाला कौन है? दीवार में कोई कील होगी जिससे अटक गया होगा। छोटी शहजादी खामोश हो गई और फिर सीढ़ियां उतरने लगी। इस तरह वो सीढ़ियां उतरती हुई एक ऐसी जगह पहुंच गई जो इंतहाई खूबसूरत थी और जहां दरख्त थे। उन दरख्तों के तमाम पत्ते चांदी के थे और अंधेरे के बावजूद बड़े चमक दमक रहे थे। शहजादियों के पीछे पीछे आने वाले सिपाही ने अपने दिल में सोचा, मुझे इस जगह की निशानी के लिए कुछ पत्ते ले लेने चाहिए। उसने हाथ बढ़ाकर एक छोटी सी टहनी तोड़ी। उसके साथ ही दरख्त से जोरदार आवाज पैदा हुई और आवाज सुनते ही छोटी शहजादी सहम कर खड़ी हो गई और बोली, मुझे यकीन है आज कोई अनहोनी बात जरूर होगी। क्या तुम लोगों ने आवाज नहीं सुनी? इससे पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ था। उस पर बड़ी शहजादी ने उसे समझाते हुए कहा, पगली, ये तुम्हारी बहनों की आवाजें हैं जो खुशी में शोर कर रही है। छोटी शहजादी खामोश हो गई और वो सब फिर चलने लगी। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे
कि वो दरख्तों के एक झुंड के पास पहुंच गए। यहाँ तमाम दरख्तों के पत्ते सोने के थे और इस तरह चमक रहे थे कि आंखें चुंधिया जा रही थी। सिपाही ने फिर सोचा, इस जगह की भी कोई निशानी रख लेनी चाहिए। चुनाचे उसने हाथ बढ़ाकर एक टहनी तोड़ ली, लेकिन इस बार उसने बड़ी आहिस्तगी से शाख तोड़ी। लेकिन उसकी पूरी एहतियात के बावजूद फिर शाख टूटने से आवाज पैदा हो गई और छोटी शहजादी एक बार फिर ठटक कर रुक गई। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज कोई अनहोनी बात होने वाली है। मैंने तीसरी बार आवाज सुनी। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी? उसकी दूसरी बहनें इस तरह खुशी से उछलती जा रही थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। इसलिए बड़ी शहजादी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें तो यूं ही वहम हो गया है। यहाँ हमारे सिवा कौन है? मुफ्त में परेशान हो रही हो। छोटी शहजादी फिर खामोश हो गई। उसने सोचा, हो सकता है ये मेरा वहम हो। लिहाजा वो खामोशी से उनके साथ चलने लगी। अभी वो थोड़ी दूर ही गई होंगी कि एक झील आ गई, जिसके किनारे पर 12 कश्तियां लगी हुई थी। हर कश्ती में एक खूबसूरत नौजवान शहजादा बैठा हुआ था और वो सब शहजादियों का इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचने पर तमाम शहजादियां एक एक कश्ती में सवार हो गई। उस मौके पर सिपाही भी आगे बढ़ा और सबसे छोटी शहजादी की कश्ती में सवार होकर एक तरफ बैठ गया। जब सारी शहजादियां कश्तियों में सवार हो गईं, तो शहजादों ने अपनी अपनी कश्ती खेलना शुरू कर दी। जिस कश्ती में छोटी शहजादी सवार थी और जिसमें सिपाही भी मौजूद था, उसको चलाने वाला शहजादा कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या वजह है। मैं अपनी पूरी ताकत से कश्ती चला रहा हूँ, मगर कश्ती बड़ी आहिस्ता रफ्तार से चल रही है। आज मुझे कश्ती कुछ ज्यादा ही भारी मालूम हो रही है। खास तौर पर एक जानिब से उस पर ज्यादा बोझ महसूस हो रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है गर्मी ज्यादा होने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, शहजादी ने कहा। आज मैं खुद भी जरूरत से ज्यादा गर्मी महसूस कर रही हूँ। उस झील के दूसरे किनारे पर एक किला था, जो उस वक्त रोशनियों से जगमगा रहा था और उसके अंदर से दिलनशीन मौसीकी की धुनें बाहर आ रही थी। तमाम शहजादों ने उस किले के पास झील के किनारे अपनी कश्तियां रोक दी और फिर अपनी अपनी शहजादी का हाथ पकड़े किले के अंदर चले गए। सिपाही, जो बुढ़िया के दिए हुए चोगे की वजह से किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, वो भी उनके पीछे किले के अंदर चला गया। शहजादियां और शहजादे जैसे ही किले के अंदर गए, उन्होंने जाते ही रक्स शुरू कर दिया और साथ ही साथ सोने के प्यालों में वाइन चलने लगी। अब वहां आलिम यह था कि पूरे जोशो खरोश से रक्स हो रहा था, लेकिन सिपाही एक अनोखा काम कर रहा था। जब किसी शहजादी के लिए वाइन का प्याला आता, तो वो खामोशी से उठाकर उसे खाली कर देता। चुनांचे जब भी कोई शहजादी रक्स रोककर वाइन पीने के लिए आगे बढ़ती और प्याला लबों से लगाती, तो वो खाली मिलता। दूसरी शहजादियों ने तो उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, लेकिन छोटी शहजादी ये देखकर परेशान हो गई। आज ये क्या हो रहा है? ये क्या राज है? मगर उस वक्त तमाम शहजादे और शहजादियां दीवानों की तरह रक्स करने में इस कदर महू थे कि किसी ने उसकी बात न सुनी और फिर वो भी उनके साथ रक्स में शरीक हो गई। वो रात भर रक्स करते रहे, यहाँ तक कि सुबह के 3 बज गए। पूरी रात मुसलसल रक्स करने की वजह से शहजादियों के नाजुक जूतों के तले सिर्फ घसे ही नहीं, बल्कि उनमें जगह जगह सुराख हो गए। आखिर उन्होंने रक्स बंद कर दिया और वापस चलने के लिए तैयार हो गए। शहजादे उन्हें साथ लेकर कश्तियों के पास आए और सब अपनी अपनी कश्ती में सवार हो गए। इस बार सिपाही सबसे बड़ी शहजादी की कश्ती में सवार हुआ था। जब शहजादा कश्ती चला रहा था, तो उसने बड़ी शहजादी से कहा, आज न जाने क्या बात है, कश्ती बहुत भारी महसूस हो रही है। उस पर शहजादी कहने लगी, तुम थके हुए हो, इसलिए हो सकता है तुम्हें चप्पू चलाने में दिक्कत हो रही हो। बहसूरत वो सब झील के किनारे पर पहुंचे और शहजादियां शहजादों से आइंदा रात मिलने का वायदा करके वापस चल दी। सिपाही भी उनके साथ साथ चला जा रहा था और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से लौट रहे थे। जब शहजादियां अपने महल के करीब पहुंची, तो सिपाही जल्दी से भागकर उनसे पहले महल में पहुंच गया और उनके आने से पहले पहले अपने कमरे में आकर मसहरी पर इस तरह दराज हो गया जैसे अभी तक नींद में डूबा हुआ हो। उधर जो ही शहजादियां अपने कमरे में दाखिल हुई, बड़ी शहजादी दबे दबे कदमों से सिपाही के कमरे में गई। उसने देखा तो वो सोया हुआ खराटे ले रहा था। वो मुतमिन होकर पलट आई और बहनों से कहने लगी, सब ठीक है। वो बेवकूफ और बदकिस्मत सिपाही गहरी नींद सोया हुआ है। उस वक्त वो सब की सब बुरी तरह थकी हुई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी जूते उतारे और लिबास तब्दील करके बिस्तरों पर दराज हो गए। सुबह जब सब बेदार हुए, तो सिपाही ने अपनी किसी हरकत से ये जाहिर न होने दिया कि गुज़श्ता रात उसने कुछ देखा है। दरअसल अभी वो मजीद मालूमात हासिल करना चाहता था। यूं भी ये उसकी पहली रात थी और उसे 3 रातों की मोहलत दी गई थी, इसलिए उसके लिए कोई फिक्र की बात न थी। चुनाचे वो दूसरी रात
उसी तरह शहजादियों के साथ गया और फिर रक्स का सारा मंजर देखा। फिर तीसरी रात भी उनके साथ गया, लेकिन तीसरी रात उसने इतना जरूर किया कि जब वो किले से वापस आने लगे तो सिपाही ने चुपके से वाइन पीने के सोने के प्यालों में से एक उठा लिया ताकि सबूत रहे। जब तीसरी सुबह हुई तो बादशाह ने खादिमों को हुक्म दिया उस सिपाही को फौरन पेश किया जाए जो शहजादियों का राज मालूम कर रहा है। हुक्म की देर थी, उसी वक्त शाही खादिम आए और सिपाही को बादशाह के हुजूर में ले गए। उसने दरबार में पहुंचते ही आदाब किया और खड़ा हो गया। उसी वक्त 12 शहजादियां एक दरवाजे के पीछे खड़ी थी ताकि देखें सिपाही क्या कहता है और उसका हशर क्या होता है। वो सारी आपस में बातें करती हुई खुश हो रही थी कि हम उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए और अब उसका हशर भी वही होगा जो इससे पहले आने वालों का हुआ है। बादशाह ने सिपाही की तरफ देखते हुए बारोब आवाज में पूछा, ए सिपाही, क्या तुमने शहजादियों का राज मालूम कर लिया है? जवाब में उसने सर झुकाकर अर्ज किया, जी हुजूर, मैंने राज मालूम कर लिया है। तो फिर हमें जल्दी बताओ कि शहजादियां रात भर किसके साथ रक्स करती हैं? उस पर सिपाही ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करो। हमारी तरफ से इजाजत है, तुम्हें जो कुछ भी मालूम है वो बयान करो। बादशाह का इतना कहने पर सिपाही ने बाअदब होकर कहा, हुजूर वाला, शहजादियां 12 शहजादों के साथ रक्स करती हैं। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजे के पीछे खड़ी हुई तमाम शहजादियों का रंग फक हो गया। उन्होंने हैरानी में फटी फटी आंखों से एक दूसरे को देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिपाही को यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ। उधर बादशाह भी उसकी बात सुनकर हका बका होके उसे देख रहा था। एक बादशाह ही नहीं बल्कि दरबार में मौजूद तमाम अमीर व वजीर भी ताज्जुब से सिपाही की जानिब देख रहे थे। हमें तफसील से बताओ और अपनी बात का सबूत पेश करो। बादशाह की आवाज में पहले से ज्यादा रोब आ गया था। आलीजा, सबूत भी हाजिर है। सिपाही ने इतना कहकर चांदी, सोने और हीरों के पत्तों वाली तीनों शाखें पेश कर दी और साथ ही सोने का वो प्याला भी रख दिया जो किले से उठाकर लाया था। उसके बाद उसने शुरू से आखिर तक पूरी दास्तान बयान की और आखिर में कहने लगा, हुजूर, मैंने आंखों देखा तमाम हाल बयान कर दिया है और उसका सबूत भी हाजिर कर दिया है। सिपाही की कहानी सुनकर थोड़ी देर के लिए तो बादशाह की समझ में जैसे कुछ भी ना आया था। वो हैरान नजरों से भी कभी सिपाही की तरफ देखता और कभी सामने रखी हुई दरख्तों की शाखों और सोने के प्याले पर नजर डालता। चंद लम्हों बाद उसने हुक्म दिया, तमाम शहजादियों को पेश किया जाए। शहजादियां तो करीब ही दरवाजे की ओट में खड़ी थी। वो फौरन हाजिर हो गईं। क्या इस सिपाही ने जो कुछ कहा है ये सच है? शहजादियां बुत बनी खड़ी थी। अब हकीकत से इनकार करना उनके लिए मुश्किल था क्योंकि सबूत भी मौजूद था। उन्होंने सर झुकाकर अर्ज किया, हाँ अब्बा हुजूर, सिपाही की सारी बातें सच है। हर रात ऐसा ही होता है। यह सुनते ही बादशाह ने एक भरपूर नजर से सिपाही की तरफ देखा, मगर अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उसने तहसीन के लहजे में कहा, ए बहादुर सिपाही, हमें खुशी है कि तुमने वो राज मालूम कर लिया जिसे मालूम करने के लिए कई शहजादे और नौजवान अपनी जानें गंवा बैठे। इतना कहकर वो लम्हा भर के लिए रुका और फिर बोला, तुम 12 शहजादियों में से जिसे चाहो पसंद कर सकते हो, उससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। जवाब में सिपाही ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर वाला, मैं चूंकि नौजवानी की उम्र से गुजर चुका हूँ, इसलिए सबसे बड़ी शहजादी मेरे लिए मुनासिब रहेगी। जैसी तुम्हारी पसंद हमें मंजूर है। चुनाचे उस रोज सिपाही की बड़ी शहजादी से शादी कर दी गई और उसके साथ ही बादशाह ने अपनी वसीयत का ऐलान करते हुए कहा, हमारी वफात के बाद यही हमारे तख्तो ताज का मालिक होगा। जहाँ तक उन शहजादों का ताल्लुक है जो रात को शहजादियों के साथ रक्स किया करते थे, उन्हें इतने दिनों तक की सजा दी गई जितनी रातों तक वो उनके साथ रक्स करते रहे थे। और बादशाह के मरने के बाद सिपाही को बादशाह बनाया गया। सिपाही बड़े आराम से हुकूमत करने लगा और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। मिलते हैं आने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।